آج 3-4 اور باتیں کروں گا کیونکہ پچھلے دنوں کافی چیزیں ہوئی تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اوپر بات کروں۔ ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر، اب آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا۔ 1 مہینہ ہم نے 126 دن گزارے، 126 دن تو میں تو اپنی پارٹی، میرے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں کئی میرے کیبنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنا کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو بڑا دلاسا دیا لوگوں کو کہ انشاءاللہ یہ جب آپ 126 دن گزارتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ اس طرح کنٹینر پہ نہیں گزارا جاتا جب وہ بیچارے اور ہمارے بچے ہیں یہ مدرسوں کے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کی ذمہ داری لیں گے، یہ ہمارے بچے ہیں۔ لیکن جس طرح ان کو لایا گیا، ان سے کوئی پوچھے، جب کیمرہ جا کے پوچھے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں، وہ کہتا ہے جی اسلام خطرے میں ہے، کہ عمران خان یا اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے آیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے۔ وہ کسی سے پوچھے، وہ کہے جی ختم نبوت، یہ قائدیانی پتہ نہیں کا قبضہ ہونے لگا ہے۔ کسی اور سے پوچھیں، وہ کہتے جی نبوت سے رسالت۔ کسی کو نہیں پتا کہ آئے کیوں ہیں۔ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ بیچارے جب بارش ہوئی مشکل وقت میں، وہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں اور گرم کمرے میں جناب فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے یہ آج بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک طرز زندگی، ایک فلسفہ، ایک اللہ سے کنیکشن جس کا نام اسلام ہے، اور کس کا دین ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا دین ہے، اس کے دین کو بیچنا پیسہ بنانے کے لیے، لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو، بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ، کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو۔ اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے؟ مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی۔ لیکن کنٹینر کے اوپر اور بھی میں نے شکلیں دیکھی، جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے۔ وہاں شہباز شریف جو مینڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا، ادھر بلاول زرداری بھی تھا۔ بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا، آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا، دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا،
जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। वो भी स्टेज पे खड़ा है, लिबरल, अपने आप को लिबरल कहता है। अंग्रेजी में लिबरल, वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। और दूसरी तरफ सारे बेरोजगार सियासतदान खड़े हैं। वहां उनकी भी मैंने शक्लें, अच्छा मैं शक्लें देख रहा था सबकी, क्योंकि मेरे पास तो अब सारी इंफॉर्मेशन है। जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। मैं ये जो मैंने चीजें सुनी, मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूं सबको। पहले तो मैंने पहले दिन जब मुझे इक़्तिदार मिला, मैंने आप सबके सामने कहा कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके मुफादात एक हैं। ये पुराने निजाम का हिस्सा है, ये मुल्क का माफिया है। कोई दीन ईमान नहीं है, कोई कहता लिबरल है, कोई कहता दीनी है। नून लीग का यही नहीं पता कि वो इधर है या उधर है। नून लीग को तो जिधर पैसा है उधर नून लीग है, जहादी भी बन जाएंगे, लिबरल भी बन जाएंगे, जिधर इनका पैसा बच जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के ये साबित किया, जो मैंने तब कहा था कि इनके और पाकिस्तान के मफादात ऑपोजिट है। पाकिस्तान के इस वक्त कश्मीर के अंदर जो 100 दिन से ज्यादा हो गया, बेचारे कश्मीर के लोग जो जुल्म हो रहा है उन पे, जब से कंटेनर का ये ड्रामा शुरू किया, यानी हम अगर कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा उनके साथ, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वहां। लेकिन सारा पाकिस्तान में मीडिया ये सर्कस के ऊपर लगा हुआ था कि मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, मौलाना आ रहा है, ये कर देगा। साथ सारा उनके हमनवा सारे तैयार हैं। सिर्फ एक उनकी कोशिश थी, इन सब की ये सारा ड्रामे करने का एक कोशिश था, जो मैंने पहले दिन कह दिया था। और वो कोशिश ये है कि प्रेशर डाल के सारे कहें कि जनाब किसी ना किसी तरह इनके करप्शन केसेस से पीछे हट जाओ। ब्लैकमेल करने के लिए आए थे। कहते हैं सबको, जब मुज़ाकरात हुए, कहते जी किसी को भी तहरीक इंसाफ से प्राइम मिनिस्टर बना दें सिवाय इमरान खान के। सिर्फ इनको मसला इमरान खान का था। क्यों था इमरान खान से मसला? सिर्फ ये कि इनको पता है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं है। उसने अल्लाह से वादा किया है, मैं अगर इनको छोड़ता हूं, मेरी कौम गौर से सुन लो, सबसे बड़ी मैं इस कौम के साथ गद्दारी करूंगा। अगर मैं इनकी ब्लैकमेल में आके, अगर मैं इनके करप्शन केसेस, ये इदारों को कहता हूं कि इदारों को कहूं कि पीछे हट जाओ। जो इन दोनों ने 10 साल में जब लूटा है तो एक दूसरों ने मिलकर लूटा है। उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने दोनों को एनआरओ दिए। एनआरओ का मतलब ये कि इनके करप्शन केसेस माफ कर दिए। जो इस कौम का पैसा लूटा हुआ था उसको माफ कर दिया। ये एनआरओ का मतलब है, अपनी कुर्सी के लिए। आज मैं अगर चुप हो जाऊं, मैं भी अगर अपनी आराम से बाकी 4 साल गुजारना चाहता हूं, मैं भी वही करूं जो जनरल मुशर्रफ ने किया था। मैं इनसे मुका कर लेता हूं, सब आराम से बैठ जाएंगे, आराम से मुल्क चलेगा, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन मुझे खौफ खुदा है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, वोट की फिक्र नहीं है। मैं अगर मैं इस कौम का जो इन्होंने किया, इस कौम के साथ 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ाया इन्होंने पाकिस्तान का 10 सालों में। आज बेचारे मुझे देख के अपनी आवाम के ऊपर तकलीफ होती है कि महंगाई से गुजर रही है। महंगाई क्यों है? एक घर को जब आप मकरूज कर देते हैं, एक घर को, कोई एक घर का फर्द
जुआ खेल के घर पे कर्जा चढ़ा देता है, तो वो घर को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है जब तक वो अपनी आमदनी नहीं बढ़ाता और कर्जे की किस्तें वापस नहीं करता, खर्चे जब कम करता है तो एक मुश्किल वक्त से गुजरता है घर। और मुझे पूरा एहसास है कि हमारी कौम के ऊपर ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त इनके लिए, इनकी वजह से है, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। और इसलिए आज मेरा पैगाम आप सबको है, सारों को, सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। मैं एक स्पेशलिस्ट हूं मुकाबला करने का। मेरी खेलों की ग्राउंडों में 20 साल ट्रेनिंग हुई है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके गया मुकाबला करके। मुझे हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है। मैं इस तरह नहीं कि कागज का टुकड़ा जी बाप बेटों को कहा जी पूरी पार्टी हमारी विरासत में मिल गई है एक कागज दिखा के। अब 5 मरले का प्लॉट भी माँ अगर बेटे को या खामद को देती है, उसको भी वेरीफाई करना पड़ता है, या पूरी पार्टी हवाले करवा दी, किसी ने अभी तक कागज नहीं देखा। दूसरी तरफ जनरल जलानी के घर के सरिया लगाते लगाते वो मिनिस्टर बन गए। मैं 22 साल नीचे से स्ट्रगल करके आया हूं, मुझे मुकाबला करना आता है। और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया।